very interesting book gifted by my friend's boss, and I promised to return it. So I had to return the book. So I'm not having it right now. It was a borrowed book. CEO Excellence, three authors. All the names are complicated, so I don't remember them. One is Malhotra, I guess. Uh, See, there are different definitions of leader or leadership, but the one that I like the most, which I think is the covers the whole gamut of leadership. Typically, a CEO or COO or any manager who is on a higher level, authoritative position, they behave in office as if to show that they are the smartest in the room. I know better than you. See, I have a lot of knowledge. I am here to teach you. This is the normal way of showing off. That see, I have an upper hand over you. तू मेरे नीचे है, मैं boss हूँ, तू subordinate है. Not everybody. Just giving a general example. Whereas I think the genuine role of a leader is to make the other person, the person who is working under him, to make him aware of the qualities and potentials that he himself is not aware of. When I read this definition, I immediately remembered the incidents from Ramayana, where when Hanuman was asked to cross the ocean and give a message to Sita Maiya कि अब ठीक तो हो, सब खैरियत तो है, हम आ रहे हैं आपको बचाने. और जब जामवंत बोलता है कि तुम जाओ और सीता मैया को ये मैसेज देके आओ, तो हनुमान बोलता है मैं तो एक बंदर हूँ, मैं एक बड़ा समुद्र कैसे पार करूंगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ नहीं, मैं तो बस एक राम का एक भक्त हूँ. और उस वक्त जामवंत ने क्या कहा था हम सबको पता है. शायद जामवंत एक भालू भालू कि अरे भाई तुम भूल रहे हो, बचपन में तुमने सूरज निकल गए थे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम उड़ सकते हो, ये वो. तब जाके उसको यकीन हुआ, अरे हाँ मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ. I think this is the quality of a leader. Yeah, I think the best of the best leaders in the world did this. It was not about showing how great they are. I think someone's. I think that's it. Thanks, Vikas. See how Vikas, before I could speak, he understood my non-verbal communication. Yeah, before even was about to say, he understood my gestures. This is called empathetic listening. He just checked from my facial expression and he got the message. Very good, Vikas. That shows you are so attentive. So I was saying about this. This is the role of a leader. I'll start with a very interesting topic covered in the book. That passion is not project specific. We think that नहीं सचिन वो उसको क्रिकेट उसकी जिंदगी में आया इसलिए सचिन नंबर 1 है ना. माइकल फेल्प को स्विमिंग वो उसके लिए बना था. He was born for swimming, इसलिए उसने इतने 20-25 गोल्ड मेडल्स जीते. ये बोलना बहुत आसान है. This is for us to get rid of our responsibility of doing the hard work. वो तो talent है, वो तो he was destined for this. Jeff Bezos was destined for Amazon.com. If that was true, tell me if Jeff Bezos was born in the pre-internet era, in the 60s or 70s, उस वक्त इंटरनेट था नहीं, तो Amazon तो बनता नहीं, right? तो क्या Jeff Bezos would have settled with a mediocre job as a clerk in Bank of America? I don't think so. I can't prove it. But are you getting a point? That passion is not project specific. ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की वजह से ही जेफ बेजोस इतना कामयाब हुआ है. So invention, purpose, innovation is accident happening to a prepared mind. Are you getting my point? वरना हम बोलते हैं कि नहीं न्यूटन को वो अगर वो एप्पल गिरा और इसलिए उसको ग्रेविटी का आविष्कार हुआ. अगर ऐसी ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो फिर हजारों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे और वो सेब गिरा होगा, तो उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों नहीं सूझा?
Passion is not project specific. Passion is an attitude. और जब वो रेस्टलेसनेस इम्पेशंस कि नहीं आई हैव टू सॉल्व दैट मिसिंग पजल, वो न्यूटन ने सोचा होगा ना उसके पहले, वो इवेंट तो बस महज एक ट्रिगर था, एक स्टूपिड एक्सक्यूज था कि वो एप्पल गिरा उसके सर के ऊपर, उसको चोट लगी। उसके पहले वो सोचता होगा ना कि व्हाई एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ, इज देयर एनी इनविजिबल मैग्नेट? There must be some several questions in his mind which made him restless, impatient, and that event happened as a trigger, and he found the answer. Okay, this is law of gravity, right? This is but stories have glamour, so हम stories के बारे में बात करते हैं. So passion की ये बात है. Do you know the real meaning of passion? Yeah, typically हम क्या बोलते हैं? Passion means do what you love, do what excites you, है ना? Wrong. That is the wrong meaning of passion. The correct meaning of passion is the original word comes from pati, P-A-T-I, which means suffering, pain. Even I was shocked. See, Dupam Gupta just gave the expression. Even I was shocked when I heard ये उल्टा ही हुआ. So the meaning has evolved wrongly over a period of time for the word passion. So, see, initially you have to suffer if you are trying to do something new. For example, trying to sell mutual fund as a distributor to somebody, you are going to struggle. 10 out of 10 people will say no, you are not interested. Then you learn, you struggle, you suffer, right? So we think that mastery comes from passion. I mean, he was passionate about cricket. That's why he's a star cricketer. Sachin Tendulkar. No, wrong. Mastery doesn't come from passion. Passion comes from mastery. First, you have to gain mastery over something, and then as a result, the people will call you as passionate, whatever, passionate cricketer, passionate reader, or passionate businessman. Are you getting my point? Do you think when Sachin held cricket bat for the first time in his life, maybe at the age of 4, perhaps, did he hit sixer on the first stroke of his life? No, of course not. Right? He must have struggled. No, हमेशा बीट किया होगा, फिर कोच ने बोला होगा कि यार स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारते हैं, हुक ऐसे मारते हैं, फुल टॉस होता है तो ऐसे मारते हैं. He suffered the pain. He suffered the most than you and me. And now as a result, तो होता क्या है, सफर करोगे शुरू में, नहीं मैं बेटर है ना, मैं I will not quit, and you gradually get better at it, and then you start enjoying it. You don't enjoy initially, you have to suffer, but when you don't quit and you try, practice, you get better at hitting the balls beyond the boundary, and then as a result, as a consequence, the world calls you as a passionate batsman. Passion comes later. It's a result of suffering, right? And when you get better at it, when you gain control over that system or that game or whatever, then obviously you'll enjoy it, right? There is very less chance that you'll not enjoy. For example, Vikas got better, वो छक्के पे छक्के लगा रहा है, या लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है विकास को. ऐसा होगा क्या? वेरी रेयर. या कोई रेसिपी सीख रहा है ना, वो इनिशियली खराब डिशेस बना रहे, बिगड़ रहे, लोग फीडबैक दे रहे कह रहे इसमें नमक कम था, नमक ज्यादा था. Then she gets better and better at it, and now she's making awesome dishes. सब लोग तारीफ कर रहे हैं, yeah. But I am not enjoying cooking. ऐसा नहीं होगा. Because you gain control over the system. Now you know फटाफट कैसे मसाले डालने, क्या डालने. When you gain control, you become a master over a skill. You definitely enjoy. I must be enjoying reading more than most of you because I've suffered the most. This is my 1915th book. Yours must be 50th or 100th book. So I will enjoy it more because I've gained control, I've mastered the skill. And hence, as a result, you guys call me as a passionate reader. Now tell me, if शुरू में सफर ही करना है, माथा फोड़ना है, then finding passion is out of question. Are you getting my point? Don't find your passion. Try 20 things. Tell your children, try 20 things.
कुछ भी करो, गिटार ट्रैक करो, फिर करो उसपे, अगर वो सफर करते गया एंड स्टार्ट गेटिंग बेटर एट इट, शायद गिटार के लिए वो बना है. Try 20 things and that those 20 things will let you know right, how deep you want to go. So that's the real meaning of passion, okay? Because I locked myself inside the bedroom for hours and weeks and months, especially when my friends were partying in late night clubs, and I sacrificed those Diwali parties and locked myself underlining big ideas of those Robin Sharma and Chudamurti. Now you guys call me as a passionate leader, right? Like मैं क्रिकेट इतना एंजॉय नहीं करता because I suffered less than Sachin Tendulkar. I hope you get my point. So that's what passion is, an attitude. It's not. I can give you another hypothetical example which the author says. Imagine that you collect the wealth of the entire world. जो गरीब और अमीर, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके पैसे वेल्थ इकट्ठा करो, हाँ? सबके जेब खाली करो and redistribute that amongst everybody in the world equally. And I guarantee कि जो पहले अमीर थे वो वापस अमीर हो जाएंगे और जो गरीब थे वो फिर से गरीब हो जाएंगे. Now you understand what I'm trying to say? Passion is not project specific. Passion is person specific. जिसको करना है ना वो बराबर करेगा. You undo the entire career of Shahrukh Khan and put him in football. He will rise up at the same level at which he is in Bollywood, right? Circumstances का best use कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है. अगर जेफ बेजोस की जिंदगी में इंटरनेट होता ही नहीं तो वो आज कुछ में भी टेस्ला बना लेता. Elon Musk की तरह, maybe. Okay, so have you heard this word called indispensable? किसी को पता है meaning? Can anybody answer? What is the meaning of indispensable? If you can quickly unmute and tell me. Indispensable word पता है किसी को? नहीं? Or you can write. कोई लिखा तो विकास जी मुझे बताना. Yes, very good. Who said this? Cannot be replaced. Irrepressible, which is not vanishable. Very good. Cannot be defeated. Yes, you almost get it. Yeah. Indispensable मतलब वो एक ऐसा एम्प्लॉय रहता है ना हर ऑफिस में कि उसके बिना काम ही नहीं होता. अगर वो नहीं आया ऑफिस या वो बोलेगा कि मैं 1 महीना छुट्टी पे जा रहा हूँ तो सबकी फटती है. तो ऐसा, whereas from office point of view it is not a good thing. Things should not be dependent on one person, but from that person's point of view, he is the indispensable person, right? He's the key person. Now, are you indispensable at home as part of the family? Definitely yes. अगर आपकी अचानक डेथ हो जाए आपकी फैमिली में, the family will crash financially, emotionally, yes or no? Yeah. But are you equally indispensable in office? Is my question. Are you a girl or a boy is charming and flashy and impressive on a romantic date? Okay, a girl or a boy. The same person, is he or is she equally charming in an office meeting, in a business meeting? Perhaps no. See, same person is indispensable in one situation and replaceable in another. Same person is charming, charismatic, energetic on a romantic date and boring, dull in an office meeting. What is the difference? What do you think is the difference between the two? Why is this? I think this is a very common thing. है ना? एक और एग्जांपल देता हूँ. एक कपल है, उनकी 13 साल की बेटी है. दोनों आईटी में है, मियाँ बीवी. एक इन्फोसिस में, एक विप्रो में. और दोनों को अगर रात को लेट तक कुछ काम दिया तो दोनों अगर मुंह लटका के, अरे यार 10 बजे तक आज काम करना पड़ेगा ऑफिस में, और मुंह लटकाते हुए घर आ जाते. 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाए और चिट हो जाएगी मुझे. यही 2 माँ बाप, हाँ, दूसरे दिन बेटी का बर्थडे पार्टी है, रात को 12 बजे तक गुब्बारे फुकाएंगे और घर को सजाएंगे, फुल लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और थकेंगे नहीं. राइट?
क्यों ऐसा होता है? या इंटरेस्ट एंड लाइकिंग, वेरी गुड। और क्या आंसर है? माइंडसेट, तस्मी ने बोला माइंडसेट, ओके। तो लैपटॉप मेरे से दूर है, लव, ओके। राजा से लव। कंटेक्स्ट, हाँ तो कंटेक्स्ट वही तो सवाल है कि कंटेक्स्ट में चेंज ही होता है हितेश। इंटेंशन, अटैचमेंट, यस। द ऑथर यूजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म कॉल्ड इमोशनल लेबर। जो पहले कंटेक्स्ट में जो बात की, वी पुट इमोशनल लेबर इन एट होम, कि हम दिल से काम करते घर पे जो भी है। घर घर में जो जो माँ होती है वो जो बोलते हैं कलेजे का एक टुकड़ा डालती है खाने में, तब जाके वो स्वाद आता है, राइट? दैट इज इमोशनल लेबर, नॉट जस्ट लेबर। लेबर तो सब करते हैं। कि ऑफिस में आपको काम बताया, इंस्ट्रक्शन देना और आपने उसे फॉलो करना इज लेबर, राइट? वो तो कोई भी करेगा, देन यू आर रिप्लेसेबल। इंडिस्पेंसिबल है तो कुछ बातें जैसे राइट नाउ विकास वाज अ वेरी गुड एग्जांपल बिफोर सेइंग कि किसी का तो अनम्यूट है माइक, ही टुक माय मैसेज, मेरा मेरे इशारों से वो पता चल गया, मैं बोलने से पहले उनको पता चल गया, एंड ही पुट हिज माइक ऑन म्यूट। इमोशनल लेवल। वेरी गुड एग्जांपल। एक फ्रेड फैक्टर करके किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, मतलब मेरी फेवरेट है। अभी वो ऑथर का एक पोस्टमैन था यूएस में। अभी आप बोलोगे पोस्टमैन में क्या इमोशनल लेबर डालेगा, बस खत डाले, बाकी आता है खत डालता रहता है बस। बट दैट इज मिस्टर फ्रेड, जो फ्रेड फैक्टर करके किताब है, वो क्या करता था, वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता था लोगों को। तो ऑथर के घर पे एक बार ऑथर गया था बाहर कहीं पे टूर पे, वो मोटिवेशनल स्पीकर था। तो कुछ खत पाइलअप हो गए थे वो लेटर बॉक्स में। तो ये जो फ्रेड जो पोस्टमैन है उसने देखा कि पाइलअप हो गए, इसका मतलब घर पे कोई नहीं है, राइट? और यूएस में कि कहीं पे भी अगर पाइलअप हो रहे लेटर बॉक्स में तो घर पे कोई नहीं, मतलब चोरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो उनके लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे हम डाका डाल सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो खत को उठा के डोरमैट के अंदर छुपा दिया और मैसेज किया ऑथर को कि भाई मैंने ना ऐसे ऐसे किया क्योंकि रिस्क है, तो मैंने छुपा के रखा है डोरमैट में, जब आओगे तो वहां से कलेक्ट। अभी उसको कुछ जरूरत नहीं थी ना करने की, वो अपना ड्यूटी करना है उसको, जो उससे कुछ उसकी पगार पे नहीं बढ़ने वाली, राइट? दिस इज इमोशनल लेबर, राइट? तो आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम गलती क्या करते हैं, जो ऑफरिंग है हमारे उसी में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है, इंसान को और चीजें भी इंप्रेस कर सकती है, राइट? कि प्रोडक्ट को बेटर करना है, बेटर देन द कंपटीशन, है ना? अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो दिस दिस स्कीम इज बेस्ट और उसी के बारे में बोलना नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था एक डॉक्टर का, कि एक गांव था, सब एमडी थे डॉक्टर और एक एमबीबीएस था, और भीड़ सब उसके पास एमबीबीएस, बाकी सबके क्लिनिक खाली होते थे। तो एक गांव वाला दिखता था कि इनके पास क्यों भीड़ है। तो वो डॉक्टर क्या करता था, जब आता है तो सब डॉक्टर को सलाम ठोकते हैं ना, ऐसा भाई भगवान आ गए, डॉक्टर तो एक भगवान का एक फरिश्ता होता है। पर ये उल्टा करता था, ये जो एमबीबीएस वाला डॉक्टर ना, वो सबके पैर छूता था कि भाई तुम हो इसलिए मेरा घर चलता है और मैं आपको ठीक करूंगा, डोंट वरी। सबको नमस्ते करते करते अंदर केबिन में जाता, उल्टा सबके साथ झुक के नमन करता था। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा कि अभी इससे कुछ दिला रहा नहीं है, गोलियां तो वही दे रहा है वो, बाकी डॉक्टर दे रहा है, इलाज तो वही कर रहा है ना? पर इस वजह से लोग उनके पास जाते थे, अच्छा इंसान है, ह्यूमिलिटी बहुत दिखा। तो एक पेशेंट वहां पे था, उसने सोचा कि मेरा तो ग्रोसरी शॉप है किराना का, मैं उसमें क्या ऐसा कर सकता हूँ, इमोशनल लेबर क्या डाल सकता हूँ? अभी साबुन तो वही बेचना है, लक्स और हमाम उसमें मैं तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो उसने क्या सोचा कि मैं यूजुअली जब कस्टमर कोई फटी हुई नोट देता है तो दुकानदार क्या बोलता है, सब साफ उसी नोट दो ना, ये बदल के दो ना, फटी हुई कोई लेता नहीं, राइट? उसने सोचा कि कस्टमर चाहे नए नोट दे या पुराने, मैं हमेशा नए कड़क नोट दूंगा, एटीएम से निकाल, बैंक से विड्रॉ कर, है ना? और उस रीजन के लिए लोग उसके पास आने लगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है टूथपेस्ट तो वही होने वाली है, दाम तो वही होने वाले, तो लगे यार चलो नए नोट मिलेंगे। तो सी कुछ लेना देना नहीं है बिजनेस के साथ ना। सो थिंक दिस वे, दैट हाउ कैन यू पुट इमोशनल लेबर इन योर बिजनेस। जैसे आप घर पे करते हो ना, वैसे ही ऑफिस में करना है, कुछ अलग नहीं करना है।
राइट? मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुक जो दूसरों के घर में काम कुकिंग करती है ना, वो अलग रहता है उसका, और वो अपने घर पे जो अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती है वो अलग रहता है अनफॉर्चुनेटली। वो बस उसके लिए वो चोर फटाफट करके जाती है, कि जल्दी से उसको खत्म करना है काम, वो दिखता है उसके उसके एक्शन से। वही घर पे एकदम 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 दिल से एकदम आराम से खाना बनाती होगी। हालांकि मैं जाके चेक नहीं कर सकता। सो आई थिंक दिस फेयर फैक्टर की कहानी मेरे दिल को काफी छुई, एंड आई थिंक यू गॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। तो एक बार एक लड़का था, कुंदन नाम था, टीनेजर था। तो थोड़ा एकदम फाइनेंशियली वीक था, तो उसके माँ बाप गए थे बिहार, तो रहने को घर नहीं था। मैंने बोला कि मेरे घर पे तुम 1-2 महीना रह सकते हो। तो एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहा था, मुझे अर्जेंट कुछ दवाई चाहिए थी, थोड़ा एलर्जी की दवाई चाहिए थी, गोलियां खत्म होने का। मैंने उसको बोला कि यही एड्रेस है, ये जेनरिक स्टोर है, तो वहाँ पे सस्ते दाम में मिलेंगे, तो ये दवाई है, प्लीज आते आते लेके आना। फिर शाम हो गई, वो घर पे आ गया। मैंने बोला कुंदन वो दवाई कहाँ गई, लाई नहीं तुम्हें? अरे हाँ दादा, वो तो दुकान बंद थी, मेडिकल शॉप बंद थी, ऐसे बोल के खत्म। तो मैंने बोला तो फिर तो मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने, कि भाई कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचते कुछ। नहीं, आपने बोला ना वो दुकान से लाना है, तो नहीं थी, बंद थी, तो का बात खत्म। तो यही फर्क है लेबर और इमोशनल लेबर में, कि उसके लिए वो एक जॉब थी एंड नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। तो मैंने उसको समझाया, वो छोटा बच्चा था, 16-17 साल का, कि भाई काम और कर्म तो फर्क होता है। ये जो तुमने किया ना वो काम किया, टेक्निकली वो करेक्ट थी, कि भाई शॉप बंद है, मैंने बोला उस शॉप से लेना है। पर कर्म, कि भाई उसके बियॉन्ड, कि ये अमृत दादा की दवाई है, तो और खत्म होने को है, तो आज उसको मिलनी चाहिए थी भाई। नहीं तो उसका जो भी है प्रॉब्लम, सर दर्द वगैरह होगा, तो आई शुड आई कॉल हिम कि भैया दुकान बंद है, तो कहीं और से लेना है। अगर जेनेरिक में नहीं सस्ती दवा तो नॉर्मल लेंगे भाई, सस्ती नहीं तो महंगी ले लेंगे, मैं ऐसा बोलता था उसको। वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, काम नहीं करना है, वो कर्म करना है, और जॉब के उसको अंजाम देना है, एंड तक जाना है, टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू व्हाट इज नॉट टोल्ड टू यू। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो मोबाइल भी करता है, सीरी भी करती है मोबाइल। हमको ऐसा रोबो नहीं बनना है। Okay, put emotions in your labor and put emotional labor. So I love this term called emotional labor. और कैसे कर सकते हैं, कि जैसे सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। मैंने देखा है कि लोग लीडर्स दे माइक्रो मैनेज पीपल, छोटी छोटी चीज पे खिंच खिंच करते हैं ना। ये बाल क्यों नहीं बनाए, दाढ़ी क्यों नहीं की, टाइम पे क्यों नहीं है, ये इतने छोटे सोच के लीडर्स आगे नहीं बढ़ते, और फिर लोग छोड़ के जाते हैं खिच खिच करने वाले। आई थिंक वी शुड माइक्रो मैनेज सिस्टम्स एंड नॉट पीपल। सिस्टम्स को इम्प्रूव करो, या, और पीपल आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, या। और सिस्टम कैसे इम्प्रूव करना है, आई नेवर सेटल। अगर ईमेल का भी रिप्लाई है ना, आई कीप आस्किंग, बार बार वही टाइप के ईमेल्स में रिप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कैसे मैं। सो आई आस्क द सिस्टम एवरी टाइम 3 क्वेश्चंस। कैन आई डू दिस जॉब इन लेसर टाइम, लेसर मनी इफ मनी इज इन्वॉल्व, और लेसर एफर्ट। टाइम, मनी, एफर्ट, इन तीनों में से, तीनों में से एक कम करने में कुछ स्कोप है क्या? देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। You never settle. No, our brain is naturally made to settle, कि चलो अभी ये ऐसा ही है, अभी ऐसा ही करना है अगला 10 साल तक, राइट? कुछ लोग मैंने देखे अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। थिंक हाउ रिजिड दे आर। उन्होंने कभी गूगल क्रोम ट्राई नहीं किया, क्योंकि दे आर यूज टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। उन्होंने ये पता है कि गूगल क्रोम इज 10 टाइम्स बेटर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंड सोचो कि दे आर सो रेजिस्टेंट टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम ओनली। तो ये अच्छी बात नहीं, देन यू विल बी लेफ्ट आउट in the competition, will fall far behind. तो एक बार सिस्टम्स का ऐसा माइंडसेट, जब मैं आर्टिकल चिप करता था सीए का, तो सीए में कैसा होता है कि 2-3 साल आप सीए के अंडर काम करते हो, पढ़ाई तो चालू रहती है, एग्जाम चालू रहते हैं। तो हालांकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं ये सब सीए ऑडिट टैक्स में कभी, तो मुझे नंबर्स का काफ़ी इंटरेस्ट था, नंबर क्रंचिंग वगैरह, और सिस्टम्स को कैसे चैलेंज करने का, कैसे कम टाइम में होगा, कैसे कम एफर्ट में होगा। तो मैं देखा था कि मेरा जो बॉस सीए था वो एक्सेल शीट पे
पूरा वो अगर आईटी रिटर्न करना है ना तो वो सब मैन्युअली करते हैं। तो वो बुजुर्ग थे तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कंप्यूटर, पुराने ज़माने के ख्यालात थे उनके। वो सब हाथ से भरते थे, फिर कुछ गलती हुआ तो फिर वापस सब नया बनाने का, हाथ से लिखने का, कंप्यूटेशन होता है, इनकम कंप्यूटेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी जो कॉमर्स बैकग्राउंड तुमको पता होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे को इस पे तो बहुत स्कोप है। एक्सेल शीट में पूरे फॉर्मूले डाले कि बस आपको इनकम डालना, एटीसी का डिडक्शन, एटीजी डोनेशन, खाट 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 स्लैब्स तो तय होते हैं उस साल के, उसका मैंने फॉर्मूले बनाए लंबे चौड़े। और जो 1 घंटे का काम 5 मिनट में होने लगा, सर खुश। तो ये सर ने कोई मुझे बोला ही नहीं था ये सब करने, राइट? आई डिड समथिंग व्हिच वाज नेवर इंस्ट्रक्टेड टू मी, देन यू बिकम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल डजंट मीन वर्किंग टिल लेट आवर्स, 10-10 और फिर कुछ जानबूझ के रात को 11 बजे बॉस को ईमेल करोगे दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं लेट तक काम कर रहा हूँ। बॉस बहुत शाणे रहते हैं, सब समझ में आता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया रहता है 10 साल पहले। तो ये दिखावे के लिए जो लोग करते हैं ना, वो ज्यादा टिकते नहीं है। हाँ, सिस्टम्स की बात कर रहा था, तो अभी जैसे मेरे गली के नुक्कड़ पे एक राजमाता वड़ा पाव है। पिछले 50 साल से शायद, या 40 साल से वो वही तवा, वही 3 लोग, और वही वड़ा और वही पाव बेच रहे हैं। तो उसी लेवल पे है। उसने कभी सोचा नहीं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वेर एज मैकडोनल्ड्स शायद 20-25 साल पहले शुरू किया होगा। देर इज एक एक छुरी भी नहीं है मैकडोनल्ड्स के किचन में। यस, मैकेनाइज द एंटायर सिस्टम। इतना फास्ट होता है ना कि इधर से वो डाला, उधर से बर्गर बाहर आ गया। अभी वो रातों रात तो हुआ नहीं होगा। उसने भी राजमाता वड़ा पाव ऐसे ही शुरू किया होगा एक दिन। एंड देन ही चैलेंज, हाउ कैन आई डू दिस इन लेसर टाइम, लेसर एफर्ट, लेसर मनी। एंड देन मैकेनाइजेशन मस्ट हैव हैपेंड। अरे ये तो 10 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो सकता है अगर ये मशीन हम बनाएंगे। तो फिर ऐसा मशीन बनाया होगा, फिर वो ट्रायल एंड एरर में फेल हुआ रहेगा, उसमें इम्प्रूव हुआ रहेगा। ही फोकस्ड ऑन शार्पनिंग द सॉ। द फेमस वो कहानी कि दो वुड कटर होते हैं, दोनों 8 घंटा काम करते हैं, और एक इंसान है वो यू नो 10 पेड़ काटता है 8 घंटे में, और एक इंसान है वो सिर्फ 2 ही पेड़ काटता है। तो ये वाला बोलता है कि अरे तू, मैं 8 घंटा काम करता हूँ और मेरे 2 ही पेड़ कटते हैं, और तुम 10 पेड़ कैसे काटते हो? देखिए 8 घंटे में से मैं 6 घंटा पेड़ काटता हूँ, 2 घंटा में तो वो छुरी को धार लगाने में टाइम जाता है मेरा, उससे मेरा फास्ट काम होता है। तो ये जो शार्पनिंग द सॉ है, वो हम कभी कई बार करते नहीं, बिकॉज हम रोजमर्रा जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं। ईमेल को रिप्लाई करना, है ना, पावर पॉइंट बनाना, मीटिंग्स अटेंड करना, इसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट शार्पन द सॉ। हम बस मार रहे, उसका शार्पनेस चला गया फिर भी मार रहे और मेहनत कर रहे, लेट आवर्स तक काम कर रहे। जब मैंने वो एक्सेल शीट बना के दिया, उसमें बहुत टाइम गया। एक बार इनफैक्ट मैंने सर को एक बार झूठ बोला कि मेरे को सैटरडे को छुट्टी चाहिए, मेरे को बाहर जाना है महाबलेश्वर। एक्चुअली मुझे महाबलेश्वर नहीं जाना था, मुझे इस एक्सेल शीट पे काम करना था घर पे बैठ, बिकॉज आई वांटेड इनडिस्ट्रैक्टेबल टाइम। फुल फोकस चाहिए ना उसके लिए, फॉर्मूले बनाने के लिए। और मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे किया कि ये वी लुकअप क्या होता है, सब सीखा मैंने। और वो शीट बने, और फिर सोमवार को आके सर को दिखाया, और फिर सर खुश हो गए। दीज आर द थिंग वी शुड डू। एक इंटरेस्टिंग कहानी है बुक में। सो हाउ टू use the human psychology, human behavior, and you can manipulate it smartly in your business. एक दुकान थी, और उसमें लिखा था नॉट मोर देन 12 कैन्स ऑफ ऑयल। तो कोई वनस्पति कुछ ऑयल रहेगा, और उसने ऐसे लिखा था कि यू कांट बाय मोर देन 12 कैन्स एट अ टाइम। और सेम ऐसी दुकान कुछ बगल में थी, और उसने ऐसा कुछ बोर्ड लगाया नहीं था, ऐसा कोई लिमिट नहीं था 12 कैन्स। और हुआ ऐसे कि 1 महीने के बाद स्टैटिस्टिक्स निकाला, तो द एवरेज नंबर ऑफ कैन्स बॉट बाय ईच कस्टमर इन द सेकंड शॉप जहाँ पे वो बोर्ड नहीं था, वर 3 कैन्स पर कस्टमर। और पहला जो शॉप था जिसपे लगाया था कि अपर लिमिट इज 12, यू कांट बाय मोर देन 12 कैन्स, द एवरेज नंबर ऑफ कैन्स वर 7। इससे आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू
अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिनेरियो। और ये लिमिट लिमिट ऐसे ही उसने डाला था, ऐसा कुछ लिमिट था नहीं, देयर वाज नो स्कैरसिटी एक्चुअली। सो द लॉजिक दैट द ऑथर गेव, I'll tell you, and I'll also tell you my conclusion beyond the logic that the author said. He said that जब 12 ये आंकड़ा लिखा था, तो our calculation, our reference point starts from 12. है ना, 12 तो बहुत ज्यादा होगा, घर में रखने को जगह नहीं है, तो मैं 7 लेता हूँ या 5 लेता हूँ या 4 लेता हूँ। The starting point, the reference point is not 12, whereas the second shop there is no such upper limit, the starting point is 0. कुछ लिखा नहीं है, तो चलो मैं 2 कैंस लेता हूँ, 3 कैंस लेता हूँ। See how he manipulated the customer's thinking. और ऐसा कुछ था नहीं, बस उसने ऐसे लिखा था। Now you understand why I have put this condition of having the key to join the mission. मुझे कुछ जरूरत नहीं थी, वो की का कोड लिखने के लिए आपको इतना माथा फोड़ना पड़ा आईटी टीम के साथ, इतना इजी नहीं था, किसी ऐप ने ऐसा नहीं किया। कौन ऐसा करेगा, सामने से ऐप डाउनलोड करना है और आप उसमें कंडीशन डाल रहे हो जानबूझ के। आई एम मेकिंग यू पुट सम एफर्ट, नाउ यू गेट माय रीजन। कि सब मेरे दोस्त बोलते, तू पागल है क्या, ये की डालेगा तो फिर लोग नहीं डाउनलोड करेंगे, तू परेशान कर रहा है लोगों का। आज परसों ही मेरे आईटी के हेड संजोत ने बोला कि दैट वाज अ हिट आइडिया, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम यू। वो की वाला आइडिया, लोग मरते हैं की के लिए। अब गूगल करोगे तो पहले हुआ तो व्हाट इज द की, अमृत देशमुख करोगे अगर आप सर की व्हाट इज द की, कोरा ने किसी पे डाला है, कोई कमेंट पे डालता रहता है मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे। मतलब आपने क्या सोचा, व्हाट इज द मेंटालिटी दैट आई चेंजेस, कि अमृत को तो कुछ पड़ी नहीं है, इसका मतलब ऐप डाउनलोड से। यहाँ पे पूरी दुनिया बोलते हैं डाउनलोड ऐप, ये ऑफर हमारे पास आओ, ये उल्टा कर रहा है। दैट मींस कुछ तो अलग है, कुछ तो दिस इज स्केर्सली अवेलेबल, राइट? So when you make things scarcely available or make it look scarcely available, the value increases. Putting a price tag is not the only way to make it valuable. पैसा भी लगा सकता था मैं, तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे फ्री रखना था। फ्री है तो वैल्यू को नहीं करोगे आप, तो ये की वाला आइडिया डाला। और अगर एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मेहनत करके आप की हासिल करोगे और फिर ऐप यूज करना शुरू करोगे, तो आपकी क्या जरूरत कि आप अनइंस्टॉल करोगे अभी बाद में, राइट? So these are the things I learned from book and I immediately implement on the mission, right? तो दूसरा जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि यही है कि जो 12 का उसने जो लिमिट डाला, तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि मतलब कुछ तो बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए शायद उसने वो 12 का लिमिट डाला, लेट मी गेट मैक्सिमम, शायद खत्म होने वाला है, कुछ होने वाला है, मैक्सिमम खरीद ले तो अभी, बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा भी सोचा, राइट? बिकॉज दैट, नहीं तो फिर कोई ऐसा कोई बिना वजह लिमिट क्यों डालेगा, अपने धंधे पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा, अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा, ऐसा सोचा। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इन योर बिजनेस एंड ट्राई इट आउट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये काम करेंगे, देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग। ये एक्सपेरिमेंट वर्ड बहुत कम यूज करते हैं आजकल। व्हाई डोंट वी यूज इट, कि हम हमेशा बोलते हैं ना, अरे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, कैन यू प्लीज हेल्प मी वगैरह, कैन यू प्लीज यूज दिस प्रोडक्ट एंड गिव मी फीडबैक। तो ऐसा करोगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे पागल ऐसा मत कर, किसी ने नहीं किया दुनिया में, तो पागल है, किया तो तेरी जॉब अच्छी थी, ये सब बोलेंगे। बट इफ यू चेंज द वोकैबुलरी एंड से दैट ये महज एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, द मोमेंट यू से एक्सपेरिमेंट, हमको क्या लगता है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ फेलियर, ट्राई क्या करते हैं, गिरा तो गिरा, फेल हुआ तो फेल हुआ, एक्सपेरिमेंट था। तो आप भी आपके बिजनेस में अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो यूज द वर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट शोज योर ह्यूमिलिटी आल्सो। ना कुछ लोग ऐसा ना, अभी रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर, गांधी जी ने क्या बोला, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट। ही कुड हैव सेड 10 laws of truth, of practicing truth and non-violence. No, he said, who am I to say the laws? ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स है, हो सकता है अच्छे नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं बस मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, आपको जो लेना है लो, ऐसा लिखा है उसने डिटेल्स में। और ये भी लिखा है कि इफ देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज इन माय बुक, प्लीज टेक द लेटेस्ट वन।
लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दिस मैन, इसके करोड़ों फॉलोअर्स है और ऐसा किसी ऑथर ने नहीं लिखा दुनिया में. लुक एट द करेज, नॉट जस्ट ह्यूमिलिटी, करेज टू से दैट आई माइट से अपोजिट बिकॉज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, मैं कोई भगवान नहीं हूँ. तो ये ह्यूमिलिटी हमको लानी है हमारे बिजनेस में. अ, एक कंपनी है कुछ डीएसएम कोई कंपनी थी यूएस की. तो जैसे हॉल ऑफ फेम होता है ना हर कंपनी में, कोई प्रोडक्ट हिट हो जाता है तो सेलिब्रेशन पार्टी, रात को सब मजे करते हैं, चलो प्रोडक्ट हिट हो गया या पिक्चर हिट हो गई तो सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक पार्टी देते हैं बड़े होटल में. इस कंपनी ने क्या किया, द हॉल ऑफ फेल्यूर. अगर कोई प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है, चलता नहीं है, तो बकायदा जैसे हम फ्यूनरल करते हैं ना, इंसान मर जाता है तो उसकी अंतिम संस्कार, उसकी चिता को आग लगाना वगैरह, वैसे लिटरली एक फ्यूनरल, सब पूरे कंपनी के सब डिपार्टमेंट से लोग इकट्ठा होंगे और एक फ्यूनरल कि भाई ये आइडिया नहीं हो गई हमसे, फेल हो गई है, इसके बाद नो रिसोर्सेज विल बी अलॉटेड टू दिस प्रोजेक्ट इज नाउ डेड, उसको अलविदा करना है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले. ऐसे लिटरली प्रे करते थे वो, टू शो दैट ट्राइंग एंड फेलिंग इज नथिंग रॉन्ग, वी विल सेलिब्रेट दैट आल्सो. तो अगर ट्राई नहीं करोगे तो फेल कभी नहीं होगा और सक्सेस भी नहीं करोगे. right? कितनी कितनी अच्छी थॉट है ना, कि कॉर्पोरेट फ्यूनरल of the flop projects and flop ideas and flop products. तो और रिस्क लेंगे ना एम्प्लॉइज कि चलो वी आर सेलिब्रेटिंग, कुछ गलत नहीं है क्योंकि रिस्क लोगे तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है और पनिशमेंट भी है, तो फेल भी हो सकता है. तो एक किस्सा बिकॉज ऑफ दिस हॉल ऑफ फेल्यूर, उससे एक बार एक प्रोडक्ट बनाया था एक डिपार्टमेंट ने, कि फोटो फ्रेम जो होता है ना, कांच का फ्रेम रहता है, अंदर पेंटिंग या फोटो के ऊपर जो कांच लगाते हैं ना, तो एक एक इनोवेशन लगाया था कि एक पाउडर कोटिंग लगाया जिससे जो बाहर का जो लाइट है ट्यूबलाइट, उसके फोटॉन्स वो ज्यादा खींचेगा और वो ग्लास को एकदम ट्रांसपेरेंट कर देगा, ऐसा लग रहा है कि वो ग्लास है ही नहीं, सिर्फ पेंटिंग है या फोटो. बस कभी कभी वो रिफ्लेक्शन आता है ना ग्लास का और फिर वो पेंटिंग अच्छी नहीं दिखती या फोटो अच्छी नहीं दिखती. बढ़िया इनोवेशन था पर फ्लॉप गया. और लेने वाले सिर्फ म्यूजियम वाले थे क्योंकि इतना महंगा हो गया था वो कोटिंग टेक्नोलॉजी, सिर्फ म्यूजियम वाले ले रहे थे तो कोटिंग लगाने के लिए, और म्यूजियम बहुत मतलब बिग मार्केट फॉर देम, तो कॉस्ट वगैरह वो सब कैलकुलेट किया तो वो नहीं परवड़ रहा था तो वो बंद कर रहे थे. तो वो हॉल ऑफ फेलियर हुआ कॉर्पोरेट फ्यूनरल की, चलो अभी ये फ्लॉप आइडिया है, ये प्रोजेक्ट हम बंद कर रहे हैं, इसको अभी हम एसेट्स एलोकेशन नहीं करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन नहीं करेंगे, आइंदा से ये मर गया है और इसकी आत्मा को शांति मिलेगी. और सब टेक्नीशियंस अलग अलग डिपार्टमेंट के मौजूद थे उस सेशन में. तो एक आदमी ने सोचा कि ठीक है चलो ये फोटो फ्रेम, तो अगर हम ये सोलर पैनल्स में कोटिंग लगाएंगे, जो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, तो वो सूरज की रोशनी को ज्यादा खींचेगा फोटॉन्स और शायद ज्यादा एनर्जी प्रिजर्व होगी. फटाक से ट्राई किया तो उन्होंने, अभी हालांकि इन्होंने सोचा ही नहीं इसका क्योंकि वो फोटो फ्रेम में थे, राइट. इतनी तो मानवीय शक्ति नहीं कि हम इतना अलग सोचते हैं, तो उसने सोचा क्योंकि उसके लिए नथिंग टू लूज कि चलो प्रोजेक्ट मर ही रहा है, लगे यार ट्राई करके देखते हैं. एंड इट प्रूव्ड 20% एनर्जी ज्यादा प्रिजर्व होने लगी सोलर पैनल में. एंड आज दुनिया के लगभग हर सोलर पैनल में उनके पेटेंटेड पाउडर कोटिंग है. सी कहां से कहां. Knowledge is not about collection of information. Knowledge is connection of information. हम कनेक्ट नहीं करते. हमको लगता है कि नहीं वो जो एग्जाम्पल दिया है ना वो उसी फील्ड के लिए, उसी टॉपिक के लिए, मेरे इसलिए नहीं होगा. ये तो बिजनेस एग्जाम्पल था, मैं जिम में कैसे यूज करूंगा, मैंने किया. आई रेड दिस लॉ कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ. वो बोलता है कि we expand our work to fill up the time available to complete it. Should I repeat? We expand our work to fill up the time available to complete it. मतलब क्या? देखो ये जो घर गृहस्थी में जो बिजी होते हैं ना औरतें, बोलते हैं ना घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, कितने काम
होते हैं, ये करना है, बच्चों के स्कूल के करना है. Actually, they expand their work to fill up the whole day which is available to them. ऑफिस में भी हम ऐसे करते थे कि चलो 9 से 6 टाइम है ना ऑफिस का, तो हम काम को ऐसे अरेंज करेंगे कि शाम के 6 बज जाए. या एग्जाम का देखो, एग्जाम के लिए अगर 3 महीने बाकी है तो एक चैप्टर के लिए हम 2 दिन लगेंगे. वही एग्जाम अगर कल है तो वो चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा. We expand our work to fill up the time available to complete it. Psychological time, right? अभी ये एग्जाम्पल तो बिजनेस का एग्जाम का, मैंने I started connecting it with my behavior in the gym. मैं पहले जिम जाता था 1-2 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पेट वैसा का वैसे, ये सिक्स पैक तो भूल जाओ, इतने साल से ये हो रहा है. फिर मैंने सोचा कि 2 घंटे में बस टाइम पास कर रहा हूँ, ये गाना चेंज करो, इस लड़की से बात करो, एक बस एक्सरसाइज तो उसमें से बहस 20-25 मिनट हो रहा है. आई एम एक्सपैंडिंग माई एक्सरसाइज टू फिल अप दोस 2 आवर्स. मैं रोज 2 घंटा जिम जा रहा हूँ, ये मैंने बोल रहा था, हालांकि एक्सरसाइज 2 घंटा नहीं हो रहा. फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या कर सकते हैं सोल्यूशन, पार्किंसंस लॉ इसमें कैसे यूज कर सकते. तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, तो ये टाइमर वाला जिम टाइमर ऐप, ऐसा कुछ टबाटा नाम का, और उसमें ऐसा टाइमर था कि हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड एक्सरसाइज, 10 सेकेंड रेस्ट, ऐसा उसमें लैप्स होता है. और मेरे 2 घंटे का एक्सरसाइज 20 मिनट में होने लगा. सी हाउ, क्योंकि मैंने टाइम को अर्जेंसी क्रिएट किया और वो ऐप बता रहा था, मुझे बीप बना तो एक्सरसाइज रुको 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड्स के बाद इतना मैं भी थका हुआ, मुझे वापस एक्सरसाइज शुरू करना है, व्हाटएवर टाइमिंग आई सेट. सो सी हाउ आई कनेक्टेड. इट्स नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट गूगल करके और भी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट नहीं करते. एंड आई इंसिस्ट ऑन रीड रैंडम. अभी आपको समझाऊंगा कि मैं रीड रैंडम क्यों बोलता हूँ हमेशा. इट्स वन ऑफ माय हैबिट्स इन माय बुक 7 Habits of Highly Effective Leaders. Yeah, I think I've covered almost all I wanted to share. It's 7:45. Should we take some questions? Yes. Yes, sir. So, yes, friends, thank you so much, sir, on that book, CEO of Excellence. So, it really meant a lot. So, the starting example was so nice. Am I audible, sir? Yeah. Okay, fine. So, yeah. Okay, we'll take up the Q&A first. So, okay, you can put your questions in the chat box, or you can raise your virtual hand. So, we'll take up your queries. So, yeah. Yes, Raja, sir. Hey, hi, Amrut. Am I audible? Yeah. Loud and clear. Yeah, it's very nice here, like this Thursday evening, and it's very nice to connect you. And thank you so much for this wonderful session. It was very helping. And so I wanted to ask about this because I'm in office currently. So you given the example of office also, like how like emotional labor stuff works. So I feel like because I'm an employee of this organization, I do the same thing, emotional labor. I always feel कि it's my dad told कि अगर कोई 100 रुपया दे रहा है तो 1000 का काम करके दो. मतलब extra what you can do. So I always been following, but sometimes in organization, your managers tend to like see like don't do overdo stuff. Yeah, like it's okay, like just do it. For example, if I want like add copy, I always work on the copies because every word is like a ROI for the brand. Like if I'm getting a good copy for a brand, it can generate more revenue. But I do spend. But one of my manager told, "Yeah, don't overdo stuff." So what's your take on this? Okay. So, do you think they are dispassionate businessmen? Is this the case? If that's the case, then you're in the wrong organization, unfortunately. Is the growth happening? Yeah. If the top management itself is dispassionate about business or the higher purpose, so and then that's because you are part of the system. Then you have to accept few things which you don't like. You want to create your own system, become an entrepreneur. Is one solution. I don't have any direct answer for your complaint about it, but I think you should not change yourself. You are on the right track. You are the Fred from the Fred factor, that you are putting emotional labor in your work. One way is about coming out with completely new ideas.
No, not just marginal improvement, but a radical innovation. There are two ways. Now iPhone is going through innovation crisis. They're coming up with marginal changes. कैमरा को इतना इम्प्रूव करते जा रहे हैं, 12, 13, 14, अभी 15 प्रो आ गया, कुछ खास नहीं कर रहे, राइट? Since Steve Jobs' demise, there is no radical innovation. I think when he was on deathbed, he was about to enter into education system and disrupt. I was very sure that if he was alive, आज education system कुछ अलग ही लेवल पे होता. म्यूजिक इंडस्ट्री डिस्टर्ब किया स्टीव जॉब्स ने, फिर वो इसमें आया. म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको 10 गाने में से एक ही गाना पसंद है, फिर भी आपको 10 गाने लेने पड़ते थे. He disrupted and came out with iTunes. Yeah. Right. iPhone has been made a mark. तो वही एक radical innovation रहेगा तो maybe they will be impressed more. Right But now, Amrut, marginal improvements. but don't you think, because like I just finished my graduation, it's been 2 years, I'm working as a digital marketer, and I firmly believe like you cannot start up by your own because you don't have that much expertise. So I currently working on like like learning stuff. Like even like today I came here because I got a lot of learnings from you, right? So I always been in the learning path. Like so I don't have any other choice. So what one simple change I can do, because I don't want to lose my curiosity. I don't want to lose my experimentations, which you said like experimentation. I never want to lose it because if I'm suggesting 50 ideas, okay, 49 ideas going to the scrap box, but it's okay. But at least one should be taken, right? That will give me a hope कि हाँ आप और कर सकते हैं. Yeah, I fully understand your situation. That many times the management says that we are open for ideas, and actually they're not so receptive to the ideas. बस बोलने के लिए बोलता है, वो होता नहीं है. In fact, I was one of such, and I had got this complaint from my subordinates कि तुम बोलते हो और करते हो तुमको जो करना है वही. Yeah, and since then, yeah, I got a tight slap. I felt like a tight slap on my face. So this is again comes how humble and what kind of humility these people have. You can't change them. Yeah. Got it. So, yeah. So I don't think I can give you a convincing answer to this. But you No raised issue. a very valid point. I'll search a book for this. Thank you, man. Thank you so much. Yeah, I'll give a chance to others to ask questions. Thank you so much. Yeah, thank you, Andrew. And सवाल लेने से पहले अमृत जी, मुझे एक सवाल है कि मौका मिलता है महीने में एक ही बार बात करने का आपसे, तो थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं. अच्छे आइडियाज नहीं आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज्यादा आइडियाज आना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आजकल. एक्चुअली जब आप किसी अच्छे पोजीशन के ऊपर होते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर दिन एक नया आइडिया आता है. पहला आइडिया मैं एग्जीक्यूट करूं उससे पहले कोई दूसरा आइडिया और दिमाग में आ जाता है. तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करोगे? तो ज्यादा आइडिया आने में प्रॉब्लम क्या है? See, the best way to have a great idea is to have many ideas. Yeah. Okay. आप देखोगे जितने भी लोग शेक्सपियर हो, A.R. रहमान हो, हमको लगता है कि अरे वो जो बनाते वो एकदम मास्टरपीस बनाते. नहीं, शेक्सपियर ने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे, बहुत सारे ड्रामा लिखे, उसमें से चुनिंदे 70 हिट हुए. ओथेलो उन्होंने बहुत लिखे. A.R. रहमान के बहुत सारे फ्लॉप सॉन्ग्स है जो चले नहीं. क्वांटिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट. शिपिंग इट एज फास्ट एज पॉसिबल. एक किस्सा मैंने बोला था एटॉमिक हैबिट्स में. तो एक फोटोग्राफी के क्लासेस थे और सब बच्चे नए थे और 2 ग्रुप में बांट दिया उनको. एक ग्रुप को बोला कि सिर्फ अच्छे फोटो निकालना है, वेस्ट नहीं करना है फोटोज को. वो उस जमाने में रील वाले फोटोज थे, डिजिटल नहीं था. और दूसरे ग्रुप को बोला जितना निकालना नहीं, पर डोंट बॉदर अबाउट क्वालिटी. बहुत सारे रील है अपने पास, जस्ट क्लिक जो आते हैं कुछ भी वीडियो में पड़े सब फोटो निकाल. एंड ऑल द फोटोज वर मिक्स्ड अप, दोनों ग्रुप के. एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स फ्रॉम द वर्ल्ड वर कॉल्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट फोटोग्राफ्स, टॉप 10 फोटोग्राफ्स फ्रॉम द मिक्स्ड फाइल. ग्रुप ए ग्रुप बी का सब मिक्स हो गया. सरप्राइजिंगली वो 10 में से 9 फोटोग्राफ्स बिलोंग टू ग्रुप बी who were told don't bother about quality, focus on quantity. What is the conclusion? इंटेंशनली पूछ गया था अमृत जी. क्या हुआ है अभी बोलता हूँ मैं उसमें. Conclusion is first group
ग्रुप में सोचा कि अरे अच्छा निकालना है, वो एक्शन ही नहीं ले रहे थे। तो अच्छा निकाला, मुझे खराब नहीं, अरे अच्छा खराब तब बोलोगे जब आप निकालोगे ना। Each photo will tell you how to click better for the next photo, for the next click. दूसरे ग्रुप वाले ने क्या सोचा होगा, अरे बस निकालो, और अगर मैं जानबूझ के ठान लिया कि खराब फोटो निकालना है, फिर भी आप खराब नहीं निकालोगे ना, उसमें भी तो आप कुछ अच्छा ही करोगे। और जितने ज्यादा फोटो निकालेंगे, they got better and better and better with each click, and they ended up clicking great photos. तो वैसे ही आइडियाज का है कि you put it in the reservoir. ऐसा नहीं कि हर आइडिया एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मेरे अभी ऐसे 75 आइडियाज हमारे ड्रॉर में पड़े हुए हैं, जिस पे हमने अभी तक एक्शन लिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, टाइम नहीं है, जो भी रीजन हो। बट दे नेवर गो वेस्ट, राइट? कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। इट्स लाइक नॉलेज। मेरे सीए का डिग्री, अभी आप बोलोगे मैंने सीए किया क्या, वेस्ट ऑफ टाइम किया क्या, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ। जी नहीं, आई हैव द कॉन्फिडेंस, सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी स्टार्टअप करूंगा, आई विल नेवर गो बैंकरप्ट, क्योंकि मुझे पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट is the only risk that an entrepreneur runs, not the variable cost, right? So your book is a variable cost for me, but rent is a fixed cost. उसको मुझे ध्यान देना है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स को मुझे लिमिट में रखना है, देन मेरी पटरी पे गाड़ी हमेशा रहेगी, राइट? अब ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। My CA knowledge is not gone for as a waste. So too many ideas is never a problem, alright? ये मैंने सवाल इंटेंशनली पूछा था इस ग्रुप के लिए, क्योंकि जिस बिजनेस में हम लोग हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के आइडियाज इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हाँ, now I get your point. होता क्या है, बातें करते हैं आइडियाज के बारे में और करते कुछ नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 7 साल पहले मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया बुकलेट का, और मेरे से काफी दोस्तों ने जॉब छोड़ा। हम सब, अरे स्टीव जॉब्स हमारा हीरो था, स्टार्टअप वर्ड हमने पहली बार सुना था, अरे स्टार्टअप शुरू करते हैं। और वो अभी भी वो 4 दोस्त रोज रात को मिलते हैं लिक्विड स्पिरिचुअलिटी पे, उसको मैं लिक्विड स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ। जैसे होटल में बैठेंगे दारू पीने को और बातें करेंगे, अरे वो बॉस इतना खड़ूस है, चलो अभी जॉब छोड़ते कुछ खुद का शुरू करते हैं, हम इतने भाई जैसे दोस्त हैं। सुबह जब दारू उतरती तो अपने अपने ऑफिस में लॉग इन करना है 10 बजे, नहीं तो पगार कटेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बस बातें नहीं, एग्जीक्यूट इट इन इट्स रॉ फॉर्म एज फास्ट एज पॉसिबल। देखो ना, मैंने जब मुझे आइडिया आया, मैंने व्हाट्सएप पे शुरू किया 1 हफ्ते के अंदर। मैं ऐप के लिए रुका नहीं, ऐप तो 1 साल के बाद आया। दिस इज व्हाट एग्जीक्यूशन is important. Ideas are useless. Ideas, thousands of ideas come to your mind on toilet seat every day. How many of us work on those ideas once we are out of the toilet? Yeah, Malti, next questions, please. Yes, sir. I remember once, like one time you have given an example. Reading book and without implementation is as good as not reading, like that. So this is applicable here also, I guess. Yeah. So I'll take the question from Anshul Awasthi. विकास जी, बहुत बढ़िया खबर है मेरे पास। So हम अभी बुकलेट हिंदी शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। वाह। और लकीली मैं पूना में हूँ। एक पूना में एक हिंदी टीचर है, उनका नाम है नमिता प्रकाश। उन्हीं के घर में बैठा हूँ। आपने देखा होगा कि ये काला माइक्रोफोन है, मेरा हमेशा सिल्वर कलर का रहता है। तो किसी ने पूछा नहीं कि आज काला कैसे है। तो आपको अगर पीछे पता है कि मैंने पोस्ट डाला था कि अभी हम हिंदी शुरू कर रहे हैं, और नमिता जी जो एक हिंदी टीचर है तो अभी मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि आप आपका चेहरा दिखाएं कि बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं माशाल्लाह, सुनने को इतना अच्छा लगता है। तो या आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच अमृत। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आप लोगों ने तो ऑनलाइन सुना है, मैंने लाइव सुना है सामने सोफे पर बैठकर, तो मेरा मजा और ज्यादा था। और मैंने आप लोगों के सेशन पहले भी अटेंड किए हैं, बहुत बहुत शानदार सेशन होते हैं। और जैसा अमृत ने बताया कि हिंदी में भी बुकलेट ऐप होगा, तो मैं चूंकि साहित्य से जुड़ी हूँ तो आपके लिए कहानियां लेकर आऊंगी, और ऐसी कहानियां जो हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियां हैं, बेमिसाल कहानियां हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहानियों से थोड़ा सा दूर हो गए। तो जैसे अमृत ने ये सबको पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, मैंने छोटा सा बीड़ा उठाया है कि सबको हिंदी साहित्य से जोड़ूं। तो चुनिंदा कहानियों को लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी। बढ़िया हिंदी बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो इंग्लिश समरी को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बजाय
क्यों ना ये जो हमारे इंडिया भारत के जो साहित्य है, प्रेमचंद हो या हरिवंश राय बच्चन जी, इनके उपन्यास को हम बुकलेट पे लाए, और हम कहीं ना कहीं वो दूर हो गए, तो उस बहाने मैं भी पढ़ूंगा आपकी वजह से। और इतने सुंदर कहानियां सुनाते हैं ना, आपकी तो आपकी मधुर आवाज है और बोलने का तो तरीका इतना सुंदर है। तो 27 नवंबर को हरिवंश राय बच्चन का बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो उस दिन हम पहली हिंदी बुकलेट आपके ऐप में आएगी, तो आप जरूर पढ़ना और सुनना। थैंक यू इंतजार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अमृत जी, बहुत जल्दी हम मैडम को भी आपकी जगह देखेंगे किसी एक बढ़िया। Okay, sir, we'll move on to the next question from Anshul ji. Yes, sir. Can unmute and ask a question. ओके, नमस्ते अमृत भैया। हाय। नमस्ते अमृत भैया, मैं बुकलेट ऐप पे डेली पढ़ता हूँ, मतलब एक बुक, और मैंने आपकी बुक भी मतलब सजेस्ट की हुई थी आपने, स्टार्ट विद बाय, और मैंने अपना काम स्टार्ट किया था उमंग उपहार, वो भी आपसे इंस्पायर्ड होके, मतलब आपने व्हाट्सएप से स्टार्ट किया था, तो अभी उमंग उपहार व्हाट्सएप से ही चल रहा है। मैं कस्टमाइज गिफ्ट सेल करता हूँ, तो एक आइडिया था, मैं बैम्बू ब्रश भी सेल करना चाहता था, बट उसमें क्या होता है कि वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मुझे समझाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। पहले तो कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों प्लास्टिक का ब्रश छोड़ के लोग बैम्बू में कन्वर्ट हो, जैसे आपको समझाना पड़ता है कि आप बुक क्यों उठाओ तो पहले तो समझाना पड़ता है और बाद में सेल करना पड़ता है। और गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट तो लोग खुद ही खरीदते हैं, मतलब वहां पे उनकी खुद इंटेंशन है, और वहां पे मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, मतलब तो मैं इसे कैसे टैकल करूं। और बीच में मैं जब दोनों को मिक्स किया हुआ था तो मेरी गिफ्ट की सेल भी घट गई थी। तो जो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए उससे कैसे करूं, जैसे मैं आपको सुनता हूं तो आप बोलते हो कि हमें स्टीव जॉब्स के जैसा माइंड चाहिए और गौतम बुद्धा जैसा हार्ट तो मैं करना तो चाहता हूँ, ब्रश पहुंचाना चाहता हूँ, बट लोग ही मतलब। गुड, आई गॉट योर पॉइंट। ओके। कोई भी चीज आप पहली बार कर रहे हो दुनिया में, हम्म। समय तो लगेगा। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। यू कांट हैव अ बेबी इन 1 month by making 9 women pregnant. इधर नहीं चलता। 9 into 1, 1 into 9 एक ही चीज है मैथमेटिक्स में। यहाँ पे पूरा एक बच्चा चाहिए तो 9 महीना रुकना पड़ेगा। तो I see, it's not about marketing, it's about positioning, or a better term is perception designing. I love this term, perception design. देखो, हम रीडिंग जैसे इतनी बोरिंग चीज को मैंने आप कैसे परसेप्शन क्रिएट किया कि आप मेड इट लिटिल ग्लैमरस, किया, यू नो, खुद के बॉडी पे काम किया कि लोग मुझे देखने वाले तो पहले मैं शेप में होना चाहिए कि रीडर कैन आल्सो हैव 6 पैक एब्स। या एक जिम ट्रेनर का 6 पैक एब होना आम बात है, और वो ऐसी होती है कि भाई मोटे चश्मे, पेट, और या फिर पूरा बुढ़ा है और वो ऐसे किसी कोने में खांसते खांसते पूरा चेंज है। You know, also 6 pack abs. So, you know, I'm trying to defy all that old image and change the perception. It's about changing the perception. जैसे मोदी जी कर रहे हैं। Have you observed that we have started taking pride in our own civilization? अभी गए वो दिन जहाँ पे अभी 5-10 साल पहले अगर किसी को अंग्रेजी ठीक से बात नहीं करने तो हम उस पर हंसते थे। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो हिंदी बोल, मराठी बोल, कुछ भी। मुंबई में तो खुद की लैंग्वेज नहीं दी, हम तीनों लैंग्वेज में बोलते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। मुझे अभी टेक्स्ट आया मैसेज दोस्त का, तू क्या करेंगे, ऐसे, और ये नॉर्मल हो गया। तो यू हैव टू चेंज द परसेप्शन। जैसे मैंने इसमें ट्राई किया, मैं भी चाहो तो एक टिपिकल स्विगी जोमेटो जैसा ये ऐप का एक इमेज रख सकता था, पर मैंने उसको एक बड़ा सोशल एंगल दिया कि चलो एक मिशन मेक इंडिया रीड करते हैं। मैंने कोई रीडिंग क्लब ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। सी, अभी फॉर एग्जांपल 10 साल पहले डैंड्रफ ना कोई चीज ही नहीं थी, हमको पता ही नहीं था कि इन लोगों ने हमें जहन में डाला कि डैंड्रफ बुरी चीज होती है ना, उसको कोई गंध है, कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं उनकी जगह रहता, मुझे कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज लाना था, मुझे कुछ बेचना नहीं होता, तो मैं बोलता कि भाई ये तो बहुत सुंदर चीज है। डैंड्रफ मतलब बालों के फूल है, सफेद फूल। पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता आज। तो कॉलेज में जिस लड़की में सबसे ज्यादा डैंड्रफ, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगती। उन्होंने ये फियर डाला ना हमारे दिमाग में कि अरे ये तो गंदा रहता है ये सब, तो फूल झड़ रहे हैं बालों से।
अभी हंसी आ रही है क्योंकि वो परसेप्शन हमारे दिमाग में है कि डैंड्रफ मतलब छी, गंदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आईफोन ने भी वही तो किया, स्टीव जॉब्स ने। बनाता तो कंप्यूटर और मोबाइल है, और हम देखते हैं इसको कैसे कि भाई कोई बोलता नहीं मेरे पास मोबाइल है, बोलता मेरे पास आईफोन है। सैमसंग वाला ऐसा बोलता है क्या मेरे पास सैमसंग है? बोलता मेरे पास मोबाइल है। ऐसा उसने क्यों किया, कैसे किया? देखो उसके एड्स, 1980s के एड्स देखो। वो कभी लैपटॉप नहीं, मैकिंटोश जो फर्स्ट लैपटॉप था ना, उसका 1984 का एड जाके देखो। उसने लैपटॉप दिखाया ही नहीं, बोला वी आर चेंज मेकर्स, वी चैलेंज द स्टेटस को। गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके फोटोज दिखाए, मदर टेरेसा, वी आर चेंज मेकर्स, हमको पुराने ख्याल को हमको तोड़ना है, ये दैट्स व्हाट ही डिड। जैसे मैंने बोला, म्यूजिक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया, पीसी को घर घर में लाया, है ना? So perception designing, I learned this from a book called The 22 Immutable Laws of Marketing. ये बुक मैंने बुकलेट में भी की है। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों के परसेप्शन चेंज करना है। कि अभी देखो, अभी ये एक चाय का कप लेके अगर मैं बात करते करते तुमसे जैसे चाय पी रहा हो या कॉफी पी रहा हो, एकदम कूल लग रहा है ना? तो वही अगर हाथ में केला लेके बात करूंगा तो हंसी आएगी। तो नमिता जी भी हंस रही है। मेरे को 5 साल दो एंड आई मेक दिस लुक कूल। सब जगह भी ना, मोदी जी भी बात करते थे, केला लेके बात करें 5 साल के बाद, आई मेक इट लुक कूल अमंग्स द यूथ। टाइम लगेगा उसका, कैसे करना है वो मैं दिमाग लगाऊंगा। तुमको दिमाग लगाना कि ये कैसे करना है। देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दिए तुमको। Malti, next question. Okay, sir, let me take a question from the chat box now. So there is a question from Asmita. My question is how to develop patience and how to develop non-judgmental listening. Non-judgmental Listening. लिसनिंग वैसे लगता है बहुत आसान चीज है, पर वही टफ है। Non-judgmental listening, just to listen without judging. See, the whole world is chatting. बातें करने वाले पूरी दुनिया, सुनने वाला कोई है नहीं। Most of the time, we listen with an intent to reply. कि कब सामने वाला अपना बकबक बंद करेगा और मैं मेरा शुरू करूँ। जैसे ही वो कुछ बोलता है ना, उसका कुछ रिलेटेड हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है, और हम बस वो बोलने के लिए रुके हैं, उसको सुन नहीं रहे। We don't listen to that person with an intent to understand that person. It's a skill. You have to hone that skill. वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। That is also as good as meditation. Listening meditation करके है। मैंने किताब पढ़ी थी, Search Within Yourself. गूगल का एक एम्प्लॉई है, इंजीनियर, उसने एक किताब लिखी, सर्च विदिन योरसेल्फ। तो बोलता है मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि बस किसी बैठना है और सांस पे फोकस करना है। तो सांस एक महज एक तरीका है, एक बहाना है कि सबसे ऑब्वियस चीज सांस लेना है, तो बिना ध्यान दिए हुए भी ले सकते हैं। तो उस पर ध्यान देना कितना मुश्किल है। और बाकी की भी चीज है कि आप बर्तन मांज रहे हो में, तो उसमें भी पूरा तन मन धन से पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। उस वक्त बहुत सोचा कि अरे मुझे जाना है, मेरे ऑफिस से फिर ट्रेन मिलेगी कि नहीं, वो ख्याल नहीं आना चाहिए। तो हाउ इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली यू आर इन्वॉल्व इन वन टास्क एट अ टाइम, दैट इज माइंडफुलनेस। So listening is also should be mindful. Again, Vikas was listening to me mindfully, hence he understood my gesture. Here, Amrut is getting distracted because he is on unmute. He was listening with full mind. Okay, तो mindfulness मतलब सिर्फ meditation नहीं होता है। Walking meditation एक होता है, पता है? कि हम जब चल रहे हैं तो यूजुअली कुछ मन में ख्याल आते हैं। वो बोलता है कि नहीं, you focus कि you are changing your weight from right leg to left leg. I'm taking my right leg in front, my left leg is behind right leg. आप लोगों का कितना बोरिंग है ये चीज। That is mindfulness, self awareness। हर चीज में आपको करना है। तो पेशेंस अपने आप हो जाएगा। पेशेंस इज जस्ट अ सिम्टम। काम पेशेंस पे आप नहीं कर सकते, माइंडफुलनेस पे कर सकते। Sir, and one more question is there from Vatsan. So he's asking, hello, Amrut. I am working and emotionally attached towards my trading and lost my 50 lakh. Why my emotions did not work in this? Where did he lose his money?
Trading. He lost his money 50 lakh towards his trading. It's very common nowadays. स्टॉक मार्केट जब से हर्षद मेहता का पिक्चर आया ना, मुझे सब लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में था, मुझे बताओ. It's quite unfortunate. Youngsters are taking money from their parents and just putting it in options, and very sad. I really can understand the situation. झटपट पैसा ऐसा कुछ होता ही नहीं है. There is nothing overnight success. Michael Jordan has said that I have failed in 100 matches, missed 600 strokes, and then I was overnight success. Yeah. So इसमें बिना knowledge लिए ना, एक तो short term trading, intraday trading is gambling. Long term investing is something sensible. तो उसके मैंने काफी सेशंस भी किए हैं. I would request you to go and watch. पाठशाला का एक I think सेशन हमने किया था. Safe ways to financial freedom, ऐसा कुछ financial strategies. और हमने पूरा स्टॉक मार्केट पे डिस्कस किया था. Do you remember विकास? हमने किया था ना काफी. I think उसको 1 साल हो रहेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, बेट साइज कैसे कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने का. तो सिंपल चीजें हैं एंड यू विल मेक मनी. पर हम क्या सीएनबीसी इधर उधर सब सुन के करते हैं. यू हैव टू कम आउट. ओके, टेक इट एज अ, जैसे ब्रेकअप होता है, चोट लगती है, रोते हैं, वी हैव टू मूव ऑन. इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. Amrut, one more comment, like a compliment and a question is there from Aarti Mehra. So, hi Amrut, I just heard you have read more than 1,000 books and you give a lot of examples on your seriousness towards workouts. Can you share some insights on this aspect? Please, since both of these do not show any instant change and you have lost interest. Yeah, reading and exercise both are boring, but I find it exciting. It was not exciting initially. ऐसा क्यों होता है? अभी देखो, now I'm in a situation, I'm a normal guy, I'm not a spiritual person, not a yogi. तो हमको लगता है ना कि ये योगी लोग वो पहाड़ों में ऐसे घंटों दिन एक जगह पे कैसे बैठते हैं? How is it pleasurable to them and painful to me? मैं बस 10 मिनट ऐसे बैठूंगा तो वो पैर नम हो जाते हैं and I change the position. तो आश्चर्य होता है ना कि किसके लिए, एक इंसान के लिए प्लेजर है, दूसरे के लिए वही पेन है. ऐसा क्यों? I'll give an example. Good question, आरती. मेरे 3 दोस्त हैं. एक है जो रोज दारू पीता है, रोज. एक है जो महीने में एक बार दारू पीता है, और एक है जो साल में एक बार सिर्फ 31 दिसंबर को दारू पीता है. और दोनों की वोकैबुलरी सुनो कैसे. जो एक है ना जो रोज दारू पीता है, बोलता है ना मेरे 3 पैक में चढ़ती ही नहीं, 4-5 पैक पीने के बाद मुझे थोड़ा किक मिलती. जो तो महीने में एक बार बोलता है कि मेरा 2 पैक में सेटिस्फाई हो जाता है. और जो साल में एक बार भी दारू बोलता है कि मैं बस जरा भी लेता हूँ ना तो मुझे वो किक मिल जाती है. नाउ सी, पेन और प्लेजर का खेल देखो यहाँ पे. आई ऑब्जर्व देयर बिहेवियर. मैं तो आई डोंट ड्रिंक, आई एम अ टीटोटलर. तो हुआ क्या होगा कि जो इंसान जो रोज पी रहा है, राइट, उसका वो इनिशियली जो प्लेजर था ना वो पेन होने लगा है कि अरे 3 बॉटल गट लिए फिर भी अभी नहीं चढ़ रही है, मजा नहीं आ रहा है. इट इज पेन, राइट. जो पहले प्लेजर था अभी पेन हो गया, और ज्यादा पीने के बाद थोड़ा बहुत प्लेजर है, मोस्टली इट इज पेन. वेयर जो साल में एक बार पी रहा है तो इमीडिएटली प्लेजर मिल रहा है. आई डोंट नो वेदर इट्स अ राइट एग्जांपल टू एक्सप्लेन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मे बी 3 साल पहले इट वाज पेन फॉर मी, बट कर करके नाउ इट हैज बिकम प्लेजर. पेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्लेजर, जो मैं आपको बता नहीं सकता लफ्जों में. सेम जो हमको आश्चर्य हो कि वो योगी कैसे बैठ सकता है एक पोजीशन में ध्यान लगा के 40 घंटे तक, हमको नहीं समझ में आया. पर मुझे मालूम है कि आज 50 पुशअप्स और 50 पुलअप्स और 5 किलोमीटर रनिंग मेरे लिए बस इट्स अ केक वॉक फॉर मी. दैट पेन हैज बीन बिकम प्लेजर. So I think this is the answer, Aarti. If you keep doing the painful act, it becomes pleasurable. And if you keep doing the pleasurable act over and over again, it becomes painful. Like the case of that alcoholic person. So we'll go for Darpan Gupta. Sorry, Dupam Gupta, you have a question? Last question, please, because Okay. I already had a talk today in Pune.
I think it's 8:15. So anyway, is it okay if it's the last question, Vikas? Or can I make 2 questions? And you say, I mean, it's a request, not a demand. Yes, sir. Namaste, Amrut ji. My name is Dupam Gupta and I'm a CA student. So, मतलब मैं सोचता था कि है ना बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो आज बहुत बड़े लर्नर्स के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे. सो माय क्वेश्चन इज कि जब आप में ह्यूमिलिटी ज्यादा आ जाती है, तब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं. तो ये कैसे रोके कि आप डाउन टू अर्थ भी बने रहो, आप जॉली नेचर के भी बने रहो, बट स्टिल पीपल रिस्पेक्ट यू एंड कंसिडर योर ओपिनियन. सो हाउ टू डू दैट? Wow, very thoughtful. Dupam Gupta. यस सर. See, 10 साल पहले मेरे पिताजी बोलते थे ये उल्लू का पट्टा क्या मराठी में क्या दे रहा है, और आज असल में मेरा बेटा करते हैं. मैंने ये क्या पूरा क्रेडिट let him take, of course. I like when you say these things. The best way to say shut up to the world is to produce results. अभी राजस्थान में क्या हुआ कुछ, मैं I was a speaker there at a very famous university, और ना कुछ गिर गया प्रिंसिपल मैम के हाथ से, तुरंत मैंने उसको उठा के हाथ पे दिया. Amrut, you are so humble, so much of humility. मैं बोला इतना है उसमें क्या है, और वही बाजू वाला वॉचमैन उठा के देता तो प्रिंसिपल मैम को ध्यान भी नहीं जाता. Action is same, but done by a person who has shown some results. Suddenly it is humility. और एक चपरासी करता है तो उसकी कोई औकात नहीं. Now you get my point. It is relative. yes. मुझे अगर तुम्हारा गिरा हुआ रुमाल उठा के देगा, अल्लाह मोदी कितना ग्रेट है, कितना हम्बल है, और वही कचरे वाला लेके उठा के देगा, कुछ फर्क नहीं. So I think you get my answer. Yes. Amrut, thank you so much for the wonderful question and answer for the Dupam Gupta's question. So yes, so that we have come to an end for today's session. Shall we take one question from the chat box, sir? Come on. One last question. Yeah. It's a question from Javani CC. Okay, done. My question is, how can one avoid negative outcomes, and how can one withstand them? Outcome is not in our control. Input is in our control. How can one avoid negative outcomes and withstand with them? Both the questions. As I said, we should not bother about outcomes. मेरे मामले में outcome क्या था? Number of people using the app, number of followers on YouTube, you know, respect from people. वो मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? To read as many books I can, to focus on my exercise, to grow myself, you know, bring more ideas is my input. Output मेरे हाथ में नहीं है. तो negative output क्या होता है? It's about either your input is a positive action or a negative action. If I started the day with a negative action by scrolling those Instagram news feeds on my mobile, the outcome will be कि आज मेरा talk एकदम मजा नहीं आता आपको शायद, क्योंकि I did not work when you were not watching me. लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो performance पे focus कर रहे हैं. What do you think? Sachin is a great cricketer because वो जो performance day जो match होता है उस दिन जो 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे जो काम करता है वो उसकी वजह से वो स्टार क्रिकेटर है, या पूरे साल जो नेट प्रैक्टिस पे वो जो 12-12 घंटा बिताता है उसकी वजह से वो आज स्टार क्रिकेटर. व्हाट डू यू थिंक? वो 2-4 घंटे T20 डे मैच के दिन या नेट प्रैक्टिस के 12 घंटे? नेट प्रैक्टिस ऑब्वियसली. वो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं या पूरे साल जो आप होमवर्क करते हैं, रिवीजन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट. You get my point. So outcome, that is the outcome. That is just a performance. What is required is practice. एक बार क्या हुआ था बचपन में, मैं CA की तैयारी कर रहा था और
बगल में ही मेरा सेंटर आया था थाना में, एकदम पास में, 15 मिनट पे था। तो मैं घर पे बैठा था, लास्ट मिनट रिवीजन में टेंशन में था, लास्ट मिनट रिवीजन कर रहा हूँ और खिड़की में बैठा था और नीचे मेरे दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे खेलने का बहुत शौक था बचपन में, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरे भाई आया, बोला क्या हुआ? तो नहीं, वो दोस्त लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जा ना खेलने। क्या भैया, अब 1 घंटे में एग्जाम है, मेरे को लास्ट मिनट रिवीजन करना है। तो बोला बुक रख नीचे, मेरी बात सुन। बोलता है अगर तूने साल भर पढ़ाई की है ना, तो अब भी लास्ट मिनट पढ़ाई करके घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तब भी आप भी पढ़ाई करके घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तू जा और खेल। I think this is the lesson that he taught. It's all about practice and not performance. Performance is just a byproduct of your that practice. Performance is outcome. The input is what you do in your bedroom when nobody is watching you. Are you watching Netflix or are you reading Robinson? That is my choice every day.